جی السلام علیکم۔ جی ہلو۔ جی تو ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ دوسرا بریک آیا تھا، اس کے بعد سیشن شروع ہوا، وہیں سے شروع کرتا ہوں جہاں ختم ہوا تھا۔ السلام علیکم غریب بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ آپ کی ڈیسک ٹاپ شیئرنگ آن ہے شاید، جی اسٹاپ شیئرنگ کر دیجیے۔ جی جزاک اب اللہ۔ ٹھیک، اب ٹھیک دکھ رہا ہے؟ نہیں نہیں، آپ صحیح ہے جی، چلیے جزاک اللہ۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ جی تو اب ہم جو پہلے سیشن میں رکے تھے، پتہ نہیں پہلے کے لوگ اس کو دیکھ سکے یا نہیں، مجھے اندازہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ جہاں رکا تھا پھر سے وہیں سے شروع کرتا ہوں کہ اس یہودی نے جب کہا کہ میں نے آپ کے پاس سے گیا تو میں نے چاہا کہ تمام دینوں کا امتحان لوں، چنانچہ پہلے میں نے توریت کو شروع کیا اور اس کے 3 نسخے لکھے، اور میں نے اس میں کمی اور زیادتی کی۔ پھر میں نے ان نسخوں کو لے کر کنیسہ میں گیا تو انہوں نے وہ نسخے مجھ سے خرید لیے۔ اس کے بعد میں نے انجیل کی طرف توجہ دی اور میں نے اس کے 3 نسخے لکھے، جس میں سے میں نے کمی اور زیادتی کی اور ان کو لے کر گرجا گھر میں گیا تو انہوں نے وہ نسخے مجھ سے خرید لیے۔ پھر میں نے قرآن مجید کی طرف قصد کیا، یعنی اس کے طرف آیا، اور میں نے اس کے 3 نسخے لکھے، اور میں نے اس میں سے کمی اور زیادتی کی اور ان اوراق کو لے کر مسلمانوں کے پاس گیا تو مسلمانوں نے اسے بغور پڑھا۔ جب انہوں نے اس میں کمی اور زیادتی پائی تو انہوں نے ان اوراق کو میرے منہ پر مار دیا اور نہیں خریدا۔ اس وقت میں نے جان لیا کہ یہ کتاب محفوظ ہے، تو یہ واقعہ میرے اسلام لانے کا ہے۔ اس یہودی نے کہا یہ اس کا واقعہ ہے۔ تو یحییٰ ابن ادم نے بیان کیا کہ میں اسی سال حج کو گیا تو حضرت سفیان بن ابینا سے ملا اور ان سے یہ واقعہ بیان کیا، تو اس پر انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ اس واقعے کی صداقت قرآن شریف اللہ تعالیٰ کی کتاب میں موجود ہے۔ میں نے پوچھا وہ کس جگہ ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں کہ فی التوراۃ والانجیل بمستحفظوا من کتاب اللہ، تو اللہ تعالیٰ توریت اور انجیل کی حفاظت ان امتوں کے ذمے رکھی مگر انہوں نے اسے ضائع کر دیا۔ لیکن قرآن کریم کے بارے میں فرمایا کہ انا نحن نزلنا القرآن وانہ لحافظون، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت ہمارے ذمے نہیں کی بلکہ اپنے ذمے رکھی ہے، اس لیے وہ ضائع نہیں ہوا۔ لیکن یہاں جو بھی خادم قرآن ہے اپنے اپنے دائرے میں اس کی خدمت کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب بچوں کو حفظ کیوں کراتے ہیں؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی تھی، تو وہ جنگ میں کم و بیش اس کا ذکر آگے آ رہا ہے 500 حفاظ شہید ہوئے ایک ہی جنگ۔ تو آپ کو بہت رنج ہوا کہ بھئی اب قرآن کے جاننے والے حفاظ شہید ہو گئے، اب آگے دوسرے امتوں، اپنی مسلمان امتوں تک کیسا پہنچے گا قرآن؟ تو انہوں نے پھر قرآن کو کتابی شکل دینے کی وہ رکھی، کیا نام ہے، جی ہاں، ترغیب رکھی، اور اس کو دوسرے صحابہ قبول کیا۔ اس کے بارے میں آگے آ رہا ہے تفصیل سے۔ تو اس بتانا ہی چاہ رہا تھا کہ ذمہ داری اللہ پر ضرور ہے، لیکن جیسا حافظ قرآن ہے وہ یاد کرتا ہے قرآن، اللہ نہ کرے دنیا میں کتابی جو شکلیں ہیں پورے کے پورے اگر جلا دیے، تلف ہو جائے، سیلاب آ کے، زلزلہ آ کے یا آگ لگ کے، تو بھی ایک حافظ قرآن جید بیٹھ کے اپنے دوسرے جو عرب جانتے ہیں ان کو بول کے قرآن لکھا سکتا ہے۔ چلو یہاں سے لکھو سورہ فاتحہ بولتا ہوں، اس کے بعد کی سورہ بولتے 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 یہاں رکو، یہاں یہ سورہ ختم ہو رہا ہے، تو اس لیے حفظ کرواتے ہیں۔ دوسری یہ ہے کہ پھر امامت میں ان کو آگے بڑھایا جائے، قرآن اس میں سنائے، تراویح میں ایک قرآن کا پورا دورہ ہو۔ یہ کیا ہے؟ قرآن شریف کی حفاظت کے ذرائع ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عنایت فرمائے۔ اب یہ چھوڑ گئے کہ صرف اللہ نے حفاظت کا وعدہ لیا ہے، ہم
वो बेनियाज है, वो जो चाहे कर ले, नहीं अल्लाह ही हिफाजत करेंगे ऐसा भी नहीं, हम पे भी कुछ जिम्मेदारियां आती हैं। जैसा कि उलमा उसके जो तर्जुमा तफसीर की हिफाजत किए हैं, कई तफसीरें हैं, रूहुल बयान है, तफसीर अजीज़ी है, तफसीर नईमी है, हमारे हैदराबाद के मशहूर मुतरजिम कुरान है अब्दुल बारी साहब की। तो ये क्या कि ये भी हिफाजत में ही शामिल है, उसके अल्फाज की, उसके तर्जुमे की हिफाजत की है, क्योंकि अरबी हर एक को नहीं आती और वो भी फसाहत बलागत वाली अरबी है। तो हिफाजत के स्टेप्स हैं, उसके डिफरेंट जो है पैरामीटर्स हैं, हर कोई अपने अपने जैसा क़ारी कुरान है, तजवीद की हिफाजत करे, वो मानता है जानता है कुरान, तजवीज से पढ़ना तो उसका लाजिम है दूसरों तक पहुंचाए। यही वजह है कि हम आज यहाँ बैठे हैं, इकट्ठे हुए हैं, तो जो भी जितना भी आता है दूसरों को सिखाएं और जो सुने हैं दूसरों तक पहुंचाए। ये किताब लिखे हैं बहुत अच्छी माशाल्लाह, इसमें ऑथेंटिक बातें हैं जो मैं भी शायद पढ़ा हूँ, लेकिन अभी फिर से ताज़ा पढ़ रहा हूँ तो बहुत ऐसा लग रहा है कि ये सब वाकया जो कुरान जमा हुआ है, कुरान की अहमियत, इफादियत, ये सब हमारे आंखों के सामने गुजर रहे, हत्ता कि आगे बयान आया है जिन्होंने कैसा इस्लाम लाया कुरान सुन के। हम तो इंसान है, जिन भी मुसलमान हुए मक्के मुकर्रमा में जब आयत नाजिल हुई, बाद कुरान में एक सूर्य जिन बोल के आया, वो सूर्य का नाम ही जिन है, सूर्य जिन। तो वो सूर्य में बाज आयतें ऐसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे थे कोई नमाज में, तो जिन्हें जाके सुने तो बोले कह रहे ये क्या कुरान, इसमें तो बहुत ही सदाकत नजर आ रही। तो जाके अपने गिरोह को बोले तो वो लोग भी सब आए, सुन के ईमान ला लिए, गुरु जिनों का जिन गिरोह ईमान ला लिया, तो वो सूर्य का नाम ही जिन पड़ गया। और मस्जिद जिन भी है मक्के मुकर्रमा में, आप हम जाते हैं देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल आगे चलते हैं। तो बहकी कुरान कुरान की हिफाजत हमारी जिम्मे नहीं है, बल्कि जिम्मा रखी है, इसलिए अल्लाह ताला ने उसको ज़ाया होने से बचाया है। बहकी ने शोएबुल ईमान में हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की है, इन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने 104 किताबें नाजिल फरमाई। देखिए अल्लाह ताला दुनिया में 104 किताबें नाजिल फरमाई, क्योंकि पहले ज़माने में होता यह था कि हर कौम को एक किताब देते थे। तो तौरेत, इंजील, ज़बूर और वगैरह वगैरह बहुत सारी किताबें, 4-5 हम दोहराते हैं क्योंकि हमारे बाद पहले के अंबिया उनके पास थी, लेकिन उससे पहले भी 104 किताबें जुमला अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई और इन किताबों के उलूम 4 किताबों पर जमा कर दी। यानी पहले के जो 104 किताबें थे उसका उलूम सिर्फ 4 किताबों में समा दी अल्लाह ताला। वो 4 किताबें ये हैं, तौरेत, ज़बूर, इंजील और फुरकान हमीद, जिसको हम कुरान कहते हैं। उसके बाद तौरेत, ज़बूर और इंजील के उलूम को कुरान में जमा फरमाया, इसीलिए ये किताबें नासिख कहलाती हैं, मनसूख कहलाती हैं। यानी 3 किताबें हैं, तौरेत, ज़बूर, इंजील, ये मनसूख हो गई। अब नासिख कौन है, एक्टिव कौन है? कुरान मजीद। साद बिन मंसूर ने इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की है कि इन्होंने कहा कि वो जो तहसील इल्म का इरादा रखता है उसे लाजिम है कि कुरान पढ़े, क्योंकि उसमें अव्वलीन और आखिरीन का इल्म है। यानी देखिए कोई भी मदरसे में कुरान आलिम का कोर्स है तो पहले उसको कुरान पढ़ा जाता है, कुरान पढ़ाने से पहले उसको तजवीद पढ़ा जाता है। तो कुरान में क्या है, इल्म को समेटा गया है, इल्मुल अव्वलीन भी है, इल्मुल आखिरीन भी है, यानी आने वालों के किस्से भी हैं, गुजरे हुए लोगों के भी किस्से हैं, कहानियां हैं। और ये किस्से कहानियां झूठे नहीं है, सच्चे वाक़याओं पर मुश्तमिल है। फिर उसमें उलूम, हिकायत भी है, हुक्म भी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, हलाल और हराम, जैसा कि हम पढ़े ये है। और शेखैन ने हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम एक हर्फ पर कुरान मुझे पढ़ाया और मैंने उसे दोहराते रहा और मैं बराबर ज्यादा चाहता रहा, वो मेरे लिए ज्यादा करते रहे, यहाँ तक कि 7 हरफों तक मुंतही हो गया। मुस्लिम ने इब्ने अबी काब रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे रब ने मेरे पास फरिश्ता भेजा कि मैं एक हर्फ पर कुरान को पढ़ूं, तो मैंने उस फरिश्ते को वापस भेज दिया कि मैं 2 हर्फ पर पढ़ूं, मगर फिर अपनी उम्मत की सहूलत के लिए उसे वापस भेजा तो अल्लाह ताला ने मेरी तरफ भेजा कि मैं 7 हरूफों पर कुरान पढ़ूं। इब्न अल मुंजर ने अपनी तफसीर में अपनी तफसीर में वहेब बिन मुनबा से रिवायत किया कि रसूल रिवायत की कि इन्होंने कहा कि कोई लुगत ऐसी नहीं है, कोई लुगत ऐसी नहीं है, लुगत यानी लैंग्वेज ऐसी नहीं है कि उसका कोई जुज कुरान में ना हो। किसी ने उनसे पूछा कि रोमी लुगत का कौन सा जुज कुरान में है? आपने फरमाया कि कसर हुन्ना है, जो क़तई हुन्ना के माने में है। ये इबारत अल खसाइस अल कुबरा जिल्द 2 से ली गई।
देखिए अब जिन्नात के कबूल इस्लाम का बयान आ रहा है इस किताब में। जिन्नात का कबूल इस्लाम और उस सिलसिले में मौजज़ात का ज़ुहूर। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वो इस सरफना इलैका, ये आखिर तक आयत, यानी जब हमने आपकी तरफ कुछ जिनों को भेजा वो कुरान सुने। नीज दूसरी जगह इस तरह इरशाद हुआ कि कुल ऊहिया इलैया अन्नहुस्तमअ नफरुम मिनल जिन्नि फक़ालू इन्ना समिअना कुरआनन अजबा यहदी इला रुश्दी फ़आमन्ना बिही वलन नुश्रिका बिरब्बिना अहदा। इन्हें सूर्य जिन के आयतें हैं। आप कह दीजिए कि मेरे पास उस बात की वही आई है कि जिन्नात में से एक जमात ने कुरान सुना है जो राय रास्त बतलाता है, सो हम उस पर ईमान ले आए और हम अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं बनाएंगे। शेखैन ने हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबा के साथ जो सूक़ ओकास जाने का इरादा कर रहे थे ताइफ तशरीफ ले गए। ये वो ज़माना था कि जब शयातीन की पहुंच खबर खबर लाने के लिए आसमानों पर बंद हो चुकी थी और उनको आग के शोलों से मारा जाने लगा था। शयातीन ने मशावरत करके ज़मीन पर मशरिक़ से मगरिब तक जायज़ा लिया कि उनका वजूद और असबाब को दरियाफ्त करें कि जिनकी वजह से हमें रोकने के इंतजाम हुए हैं। जिन्नात इस जायजे के दौरान तिहामा पहुंचे तो इन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नखला में नमाज फजर पढ़ते देखा। जब इन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़याम सलात में तिलावत को गौर से सुना तो कहने लगे कि खुदा की कसम ये वही चीज़ है जो हमारे और आसमानी खबरों के दरमियान हायल होती है। फिर वो जी जी हो रही हो रही जी अ, जी। तो जब इन्होंने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ रहे हैं तो हुजूर से क़याम सलात में तिलावत पर गौर से सुना तो कहने लगे कि खुदा की कसम ये वही चीज़ है जो हमारे और आसमानी खबरों के दरमियान हायल होती है। फिर वो पलट कर अपनी कौम में पहुंचे और कहा कि अय कौम, इन्ना समिअना कुरानन अजबा यहदी इला रुश्दी फ़आमन्ना बिही वलन नुश्रिका बिरब्बिना अहदा। बेशक हमने अजीब कुरान सुना जो सीधी राह की तरफ रहनुमाई करता है, तो हम उस पर ईमान लाए और हम हरगिज अपने रब के साथ शरीक नहीं करेंगे। तो ये सूरह जिन की चंद आयतें थे। इब्ने हजर इब्न इब्ने जरीर व हाकिम ने बहकी में अबू नईम ने हजरत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की है कि एक रोज़ मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने के मुताबिक ठहर गया। बस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को घर से रवाना हुए और मुझे साथ रखा। हम मक्के के बालाई हिस्से में पहुंच गए। वहां पहुंचकर आपने फर्श ज़मीन पर खत खींचकर एक दायरा बनाया और मुझसे फरमाया कि इस दायरे के अंदर बैठ जाओ। हुजूर थोड़ी दूर गए और खड़े होकर तिलावत कुरान शुरू कर दी। मैं देख रहा था कि आपको कसीर लोगों ने आ घेर लिया, हत्ता कि वो लोग मेरे और हुजूर के दरमियान हायल हो गए। आपने अब अब ना मैं आपको देख सकता था और ना तिलावत की आवाज़ सुन सकता था। फिर वो उड़ते बादलों की तरह टुकड़ों की सूरत में रवाना हो गए। सिर्फ एक जमात रह गई और उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज पढ़ी। फिर वो भी रुखसत हो गए। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ लाए और फरमाया, वो लोग कहाँ गए? मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, वो लोग वहाँ वहाँ हैं। उनके बाद हड्डियां और गोबर उन लोगों को आपने दिया। इस वाक़े के बाद हड्डियां और गोबर से इस्तिंजा करने के लिए आपने ममानियत फरमाई। अल क़िस्ससुल कुबरा जिल्द अव्वल। नुज़ूल वही के मौके पर ज़ुहूर मोजज़ात। जब यानी नुज़ूल वही जब कुरान उतरता तो उस पर ज़ुहूर मोजज़ात, तो क्या मोजज़ात ज़ाहिर होते उसके बारे में बयान है। इब्ने अबी दाऊद रज़ी अल्लाह इब्ने अबू दाऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किताबुल मसाहिफ में अबू जाफ़र से रिवायत करते हैं कि इन्होंने कहा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के मनाजात जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए होती
सुना करते थे और उनको नजर न आते थे। इमाम अहमद, तिरमिजी, नसाई, हाकिम, बहकी और अबू नईम ने बसनद जय्यद हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाजिल होती तो हम शहद के मक्खियों की भिन भिनाहट की मानिंद आवाज़ें सुना करते थे। एक रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के करीब से यह आवाज़ सुनी जाती। शेखैन ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हारिस बिन हिशाम ने पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही किस तरह नाजिल होती। फरमाया, मेरे पास कभी कभी घंटी की सी आवाज़ आती और ये कैफियत मुझ पर बहुत सख्त गुजरती, फिर वो ज़ायल हो जाती और फरिश्ता जो कहता है मैं याद कर लेता हूँ। कभी फरिश्ता इंसानी सूरत में आकर कलाम करता है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने सख्त सर्दी के दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होते देखी तो आपकी पेशानी मुबारक से पसीना बह रहा था। इब्ने साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि मेरे पास वही दो तरह पर आती, एक फरिश्ते के जरिए एक फरिश्ते के जरिए और दूसरी आवाज़ के जरिए जो मिसले घंटे की आवाज़ होती है, मगर ये सूरत मुझ पर गरां गुजरती थी। अबू नईम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नुज़ूल वही के वक्त बोझ महसूस करते थे, इसीलिए इरशाद बारी है कि इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला, यानी बेशक हम आप पर भारी कौल अलक़ा फरमाया। अबू नईम ने हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाजिल होती तो आप उसका बोझ महसूस फरमाते और पेशानी पर पसीना नमोदार हो जाता, खास सर्दी का मौसम ही क्यों ना हो। तबरानी ने ज़ैद बिन साबित से रिवायत की है कि इन्होंने फरमाया कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही लिखा करता था, जब आप पर वही नाजिल होती तो आपको शदीद लर्जा लाह हो जाता और आबदार मोती की मानिंद पसीना आ जाता। फिर जब ये कैफियत रफ़ा हो जाती तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही लिखवाते और मैं उसको तहरीर करता। जब मैं वही की किताबत से फारिग हो जाता तो कुरान करीम के बोझ से मुझे अपने पाँव टूटे मालूम होते थे, हत्ता कि मैं ख्याल करता कि अब कभी चलने के काबिल न रहूंगा। देखिए कितनी सख्ती और मेहनत से ये लोगों ने कुरान हम तक पहुंचाया है। तो बहुत सख्ती और उसके जो है कैफियत, क्योंकि आसान काम नहीं है कुरान शरीफ, ये बहुत सकील चीज़ है। फिर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में चूंकि आपको शक वो किए थे, आपका दिल शक किए थे, या फिर आपको जमजम से धोए, और ये प्रोसीजर के बाद फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी मशक्क़तें सहते हुए कुरान हम लोगों तक पहुँचाए हैं। फिर आगे इमाम अहमद ने हज़रत इब्ने अब्बास से रिवायत की है कि इन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वही नाजिल होती हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाजिल होती तो आपके रंग के तगैर से लोग पहचान लेते। हज़रत अबू नईम ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की है कि उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाजिल होती तो आपके चेहरे अनवर पर और जिस्म मुक़द्दस का रंग मुतगय्यर हो जाता था और आपके असहाब इकराम रज़ी अल्लाह ताला की गुफ्तगू से रुक जाते और आप खुद भी किसी से गुफ्तगू न फरमाते। इमाम अहमद व बहकी ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत की है कि नुज़ूल वही के वक्त अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पर सवार होते तो बारे वही से ऊँटनी गर्दन डाल देती। यानी अहमद, तिबरानी और बहकी और अबू नईम ने हज़रत अस्मा बिनते यजीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत की है कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी की महार पकड़ी थी। आप इस पर सवार थे कि सूरह माइदा नाजिल हुआ तो करीब ही था, ऊँटनी के बाजू बारे रूह से टूट जाते। मुस्लिम ने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वही नाजिल होती तो हम में से किसी में मजाल न होती कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नजरें डाल सके। अब इसके बाद कुरान करीम की किताबत कैसा लिखा गया कुरान को, उसके बारे में बयान है। कुरान करीम की किताबत के बारे में आपकी खबर। इब्ने असा इब्ने असा असाकर ने नबीद अशजई से
रिवायत की है कि इन्होंने कहा कि हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान करीम के नुस्खों की किताबत कराई, तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे कहा कि आपने राह सवाब इख्तियार की और आपने तौफीक हक़ पाई। मैं गवाही देता हूँ कि यकीनन मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। आप फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में से ज़्यादा मोहब्बत रखने वाले लोग जो मेरे बाद आएंगे वो हैं जो बगैर देखे मुझ पर ईमान रखेंगे, और जो वर्क़ मुअल्लफ़ में से अज़ान हो रही है, थोड़ी देर के बाद अज़ान के बाद बयान करेंगे इंशाअल्लाह।